Good morning, dear students. As we are going through the chapter The Rise of Nationalism in Europe. In the previous videos, we had discussed about the revolutionaries, Giuseppe Mazzini, and the revolt in the France. In this video, we will discuss the next topic of this chapter. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं, revolutionaries और liberal nationalists, they were continue struggling and protesting against the autocratic monarch government. In many parts of Europe, in many states of Italy and Germany, these revolutionary groups were continue struggling for making the nation, for getting the equal rights and freedom and liberty. And in the France, as we have seen that the Bourbon dynasty government rulers were removed by the revolutionaries group. So it event affected the many other countries of the Europe. As we know very well, when the France sneezes, rest of the Europe catches cold. Means फ्रांस में जो घटना होती है उसका असर यूरोप के कई देशों पर पड़ता है. तो फ्रांस में जो ये रिवोल्यूशनरी रिवोल्ट हुआ, इसका असर भी कई देशों में देखने को मिला. जैसे बेल्जियम में हुआ, उसी तरह से ग्रीस में भी इसका असर दिखाई पड़ा. ग्रीस वाज ए कंट्री रूल्ड फ्रॉम 15th century under the Ottoman Empire. From 15th century. As we know very well, Ottoman Empire is the Muslim empire, and Greece is very important and famous country regarding the civilization in whole world, not only in Europe. Greece is known as the cradle of European civilization. Greece is known as the cradle of European civilization. Cradle of European civilization means the पश्चिमी सभ्यता के यूरोपियन सभ्यता का सबसे इम्पॉर्टेंट उद्गम स्थान. ग्रीस ने वर्ल्ड को बहुत सारे दार्शनिक, फिलासफर्स, जनरल्स और बहुत सारे पौराणिक नायक दिए हैं. अमॉन्ग देम सिकंदर, अरिस्टो. यू हैव लिसन द सो मेनी नेम्स, एंड दैट इज द रीजन द ग्रीस इज नोन एज द cradle of European civilization. When the revolutionary activities spread in other parts of Europe, the peoples of Greece, they wanted to be independent. The growth of revolutionary nationalism sparkled of the struggle of independence. Revolutionary nationalism की चिंगारी ने यहाँ के लोगों को भी मोटिवेट किया इंडिपेंडेंस के लिए. एंड द रिवोल्ट ऑफ द started in 1821. The Greece got the support from West European countries. Many West European countries who are affected and agree with the Greece civilization, they ready to give the support to the Greece for getting the independence from Ottoman Empire. Many other peoples who are exiled from the Greece living in other countries of the Europe, they are also ready and agree provide the support to the Greece for getting the independence from Ottoman Empire. Many poets and artists, they lauded the Greece as the cradle of European civilization. Through their writings, through their songs, through their poetries, they mobilized the people in this struggle against the Ottoman Empire. Among them, one most famous poet, the Lord Byron, the poet of England. He also organized the people, organized the fund, and also went to the war in the Greece war of independence. Here in 1824 he was died due to the fever. But in this way, not only Lord Byron, many other poets, they give full support in this Greek war of independence. Finally, in 1832, with the Treaty of Constantinople of 1832, the Greece recognized as an independent nation. So this is known as the Greek War of Independence or also the Greek Revolution. So let's come next. अभी आपने देखा ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत सारे पोएट्स, आर्टिस्ट और जो है राइटर्स, इन लोगों ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. तो व्हेन द पोएट्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, दे गिव देयर सपोर्ट टू एनी रिवोल्ट और प्रोटेस्ट, दिस इज नोन एज द रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म मीन्स cultural movement. In any movement, when the support get by the literature, by their music, dance, art, this is known as the cultural movement. So
in Europe in 18th and 19th century is also the marked movement in reaction in literature, philosophy, art, religion and politics to the formalism of the preceding period. जो नया पीरियड, जो नए युग की शुरुआत हो रही थी, उसमें साहित्य का, लिटरेचर का, कला का, दर्शन का, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, धर्म, इन सभी का बहुत ज़्यादा योगदान था. तो दिस इज नोन एज द रोमांटिसिज्म और द कल्चरल पीरियड. अगर हम बात करें जो डेवलपमेंट आया वो केवल वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आया, तो ये गलत है. कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन थ्रू द आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प द एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग. नेशनलिस्ट फीलिंग को बनाने के लिए वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था. एज यू कैन सी इन आवर कंट्री व्हेन द नेशनलिज्म स्ट्रगल वी आर गोइंग ऑन, so many poets, artists give the slogans, songs that inspired the peoples of India, like the Vande Mataram, right? So these are the सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. These songs motivate and inspire the people and rise the nationalism feeling. अब हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म के फीचर्स की. इसमें क्या था, किस तरह से लोग इफेक्टिव हो रहे थे. थ्रू द रोमांटिसिज्म the main focus on emotions, intuitions and mystical feelings means internal feeling. लोगों के अंतर मन में क्या है, उनके इमोशंस को मोटिवेट किया जाए देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए. जब तक वो इंटरनल देश के लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई भी मूवमेंट इफेक्टिव नहीं हो सकता. द जर्मन फिलासफर जॉन गॉटिफायड ने कहा कि ट्रू कल्चर ऑफ जर्मनी वाज टू डिस्कवर्ड थ्रू द folk songs, folk poetry and folk dances means लोकगीत. लोकगीत, लोक कला, लोक नृत्य से हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, जिससे लोकगीतों के द्वारा हम देश के पुराने इतिहास को बता करके, देश के पुराने लीडर्स के बारे में बता करके लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं. These poets and artists emphasis on vernacular language and the collection of folklore. मीन्स इनका जो जोर था वो वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो लोकल भाषाएं हैं, जो लोग जन सामान्य की भाषा है, उसको द्वारा हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं. इन्होंने जोर दिया कि हमको जो लोक गीत है, जो लोक संगीत है, जो लोक नृत्य है, इनका एक कलेक्शन बनाना चाहिए जिसके द्वारा वी कैन रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट, जिसके द्वारा हम जो देश की एंशियंट, जो पुरानी सभ्यता है, जो पुरानी स्पिरिट है, जो भावना है, जो वीरता की गाथाएं हैं, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसको देश के जो न्यू ग्रुप है, जो एजुकेटेड ग्रुप है, उन सबको हम मोटिवेट कर सकते हैं. और ना ही केवल एजुकेटेड बट बाय द लोक डांस, बाय द लोक म्यूजिक, लोकल लैंग्वेज वी कैन इंस्पायर द पीपल हु आर अनएजुकेटेड. जो अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बुक नहीं पढ़ सकते, उनको भी हम लोकगीत भाषा में, लोकगीतों के द्वारा इंस्पायर कर सकते हैं. आपने देखा होगा भारत में भी जब नेशनल स्ट्रगल हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे कलेक्शन आए, बहुत सारे ऐसे गीत प्रस्तुत किए गए जिससे लोगों को मोटिवेट किया गया, इंस्पायर्ड किया गया नेशनलिज्म के लिए, अपनी कंट्री के लिए फाइट करने के लिए, कंट्री के लिए मरने के लिए सब लोग इंस्पायर्ड हुए. तो दिस इज द रोमांटिसिज्म. व्हेन द पीपल्स आर मोटिवेटेड, द कल्चर play the important role. When the peoples are motivated through the songs, literature, art, music, dance, this is known as the romanticism or the cultural movement. अभी आपका असाइनमेंट है आज की वीडियो का. फर्स्ट, व्हाट वाज द रोमांटिसिज्म ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवोल्यूशंस. रिवोल्यूशंस के पीरियड में रोमांटिसिज्म का मतलब क्या था, मीन्स कल्चरल मूवमेंट. सेकेंड, व्हाट वर द आइडियाज ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स. उनके आइडियाज़ क्या थे, किस पे वो चाहते थे कि फोकस किया जाए, किस पे जो है जोर दिया जाए. नेम द ट्रीटी दैट रिकॉग्नाइज द ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. वो कौन सी ट्रीटी थी जिसके द्वारा ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला. एक्सप्लेन द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म का क्या रोल था. एंड लास्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है कि उसमें क्या क्या घटनाएं हुई. तो आज के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.